ہی اور ہمارے سارے ہاں بھائی جتنے بھی ہیں اب یہاں پہ آپ کی میں لڑائی کروا دیتا ہوں اس وقت سلفیوں سے اور ابو حنیفہ کی. اب ان دونوں کی لڑائی میں بتائیں کون جیتتا ہے, یہ بتائیں. دیکھیے اب لڑانا ہی کیوں ہے, سب اللہ کے بندے ہیں, اگر سب مل جل میں کے نہیں نا رہیں تو مانتا کیا اللہ کو, دکھ ہے آپ میں کو, مانتا بتائیے ہوں کہ اللہ ایک تکلیف شیطان ہے. کیا ہے آپ کو؟ میں تکلیف بتا دی نا, ٹھیک میں ہے, نے بتا دی میرے مطابق اللہ ایک شیطان ہے. آپ نے کہہ دیا اللہ شیطان ہے, ٹھیک. اب ایسے ہی جیسے آپ آج کہہ رہے ہیں ویسے ہی کچھ سمے پہلے کچھ لوگوں کے من میں کچھ الگ الگ جو ہے اپنے اپنے تھاٹس آ گئے, اور اسی کے چلتے جو ہمارے نہیں, یہ پیارے چیز نبی نے قرآن جو سے کہہ ثابت ہے. دیا, نو سوری سر, یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے آپ ثابت کر میری ہی نہیں سکتے کہ ہاں اللہ جو ہے کر دیا شیطان ہے, نہیں کر ہوا, سکتے. میں نے آپ اور کو میں اپنا 20 ایمان پوائنٹس داؤں دیے. پہ لگا رہا ہوں, میں دیکھیے بڑی بات اوکے کر رہا ہوں, میں اپنی ایمان داؤں پہ لگا رہا ہوں. اگر آپ نے ثابت کر بہترین. لیا تو میں کچھ اور بن جاؤں گا کل. اوکے ڈن. کل کیا ابھی کا داؤ لگائیں, باقی سب کو اٹھا کے آپ سے بات کرتا ہوں. میں داؤں لگانے کو تیار ہوں اس بات پہ, آر یو اللہ شیور؟ شیطان ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں سر قرآن سے ثابت کر دوں, سن آپ لیں میں میرا مسلمان پوائنٹ سن. ہوں سر اگر میرا پوائنٹ سن لیں, ٹھیک میرا پوائنٹ سن لیں, تاکہ پھر میں اپنے اسٹریم کے ٹاپک کو ڈائیورٹ کروں گا آپ کے لیے. اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں کہ اللہ میاں اور شیطان دونوں قرآن میں ایک جیسے کام کر رہے ہیں, جو کام اللہ کرتا نہیں ہے کر وہی سکتے. شیطان کر. سر ایک سیکنڈ رکیے, میں مانتا ہوں کہ آپ کو ابھی یہ پتا ہے کہ نہیں کر سکتے, رائٹ. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اور وہ میں نے 4 گھنٹے کی ویڈیو بنائی تھی, اس میں نے 20 پوائنٹس دیے تھے. میرا خیال میں آپ کو 20 پوائنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے, آج میں آپ کو 5 دوں گا صرف. لیکن اگر میں قرآن کی روح سے ثابت کر دوں, تھنک اباؤٹ, اپنا جواب دینے سے پہلے ایک دفعہ بہت دفعہ سوچ لیجئے گا. اگر میں قرآن کی روح سے ثابت کر دوں کہ قرآن کے مطابق اللہ اور شیطان ایک جیسا کام کر رہے ہیں مختلف مقامات کے اوپر, کیا آپ اسلام کو چھوڑنے کو تیار ہوں گے آج ابھی کے ابھی؟ ٹھیک ہے, اب میں کچھ کہہ دوں اگر آپ کی. جی بولیے. دیکھیے آپ جس کسی کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس سے کتنی محبت کرتے نہیں کرتے مجھے نہیں پتا. میں اپنے دین و ایمان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, اور میں آپ کو اسی محبت کا واسطہ, میں بڑی بات کر رہا ہوں, میں اسی محبت اور اسی جذبے کو میں رکھتے ہوئے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ثابت کر دی بنا کسی کٹ کاپی پیسٹ کے یا پھر کسی چالاکی کے, تو جو آپ کہیں گے وہ کوئی چالاکی نہیں, قرآن دکھاؤں گا, عربک ورڈز دکھاؤں گا, اور عربک ورڈز کے مطابق جو اللہ کر رہا ہے, میں ٹرانسلیشنز میں بھی نہیں جاؤں گا. اور بتائیے, عربی آپ پڑھ تو سکتے ہیں نا ایٹ لیسٹ. میں صرف اور عربی صرف تھوڑا بہت قرآن میں دکھاؤں, پڑھ لیتا ہوں. میں صرف اور صرف قرآن دکھاؤں گا, ٹھیک ہے, قرآن کی عربک دکھاؤں گا, اور آپ کو یہ ثابت کر دوں گا کہ اللہ میاں وہی کام کر رہے ہیں جو کہ شیطان کرتا ہے. اگر میں آپ کو 5 کام دکھا دوں کہ اللہ کے اور شیطان کے بالکل ایک جیسے ہیں قرآن کے اندر, کیا آپ ابھی کے ابھی اس شیطان کو چھوڑنے پہ راضی ہوں گے؟ دیکھیے میں پہلی بات تو شیطان مانتا نہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کیا بھی ہے نہیں مجھے دیکھا آپ نہیں نے یار, پتا. اس لیے ٹینشن نہ دیں اس بات کی, اللہ بھی نہیں دیکھا آپ نے. ہاں ونس اگین, میں نے اب آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ میں بھاگنے کی بالکل نہیں کوشش کر بھاگوں رہے گا, ہیں, میں بھاگے یہیں نہیں. کھڑا ہوں, اوکے, ناؤ بالکل نہیں بھاگوں گا لیٹ میں. می آسک یو اگین. اللہ آپ نے نہیں دیکھا, شیطان آپ نے نہیں دیکھا. میں اگر آپ کو ثابت کر دوں قرآن پاک کی عربک سے, اردو کی ٹرانسلیشن سے بھی نہیں, انگلش ٹرانسلیشن سے بھی نہیں, ہم کسی ٹرانسلیشن کو نہیں دیکھیں گے, بھاڑ میں گئی ساری ٹرانسلیشن, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو عرب اور تفسیر بھی بھاڑ میں گئی, تفسیر کو بھی گولی ماریں گے, ہم کچھ نہیں دیکھیں گے, صرف قرآن پاک کی الفاظات کو دیکھیں گے. اور اگر ثابت ہو گیا کہ اللہ میاں اور شیطان قرآن کے مطابق ایک جیسے کام کر رہے ہیں, کیا آپ ابھی کے ابھی اسلام کو چھوڑیں گے؟ آپ مجھے ریفرنس بتا دیجئے گا, میں اس یار کو کوئی اور نہیں تھوڑا بولے گا ابھی, ویریفائی کوئی ضرور. اور نہیں بولے گا ابھی, کوئی اور نہیں بولے گا ابھی. ایک اوکے, بات صرف. آپ ایک سیکنڈ, کوئی اور نہیں بولے گا, جو بولے گا میں اسے بلاک کر دوں گا. یہاں پہ میں ایک بندے سے بات کر رہا ہوں, مجھے کر لینے دیں. اس کا مطلب ہے بھائی آپ اپنی حجت سے بیک فٹ پہ چلے گئے. نہیں, میں بالکل نہیں بیک فٹ پہ نہیں بیک جا فٹ رہا پہ ہوں, میں چلیں گے. یہ کہہ رہا ہوں. ابھی آپ نے دیکھیے کہا ہے ایک کہ آپ سیکنڈ, ثابت نہیں کر سکتے, ایڈم میں نے بھائی, آپ کو کہا میں ثابت کر دیتا ہوں. دیکھیں سر, 2 چیزیں نا, ایڈم بھائی, آپ میں میں اپنی ایک اسٹریم کا سیکنڈ, ٹاپک چینج کر رہا ہوں آپ کے لیے. نہیں مت کیجیے, آپ جو چلا رہے ہیں چلائیے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو مجھے دکھائیں گے وہ میرے لیے میں نوٹ کر لوں گا وہ نہ ریفرنس, اور اس کو میں نہ ڈیفینیٹلی, اگر کیونکہ آپ دیکھیے اتنے کانفیڈنس سے بات کر اگر رہے آپ نے تھے, چالاکی کر لی, اسی میں کانفیڈنس تو نہیں, اپنے دین چلاکی کی ایمان کیا سے بات چلا ہے, جاؤں گا نا. چلاکی آئی ڈونٹ, بھائی چلاکی کیا, ہم ایک ایک پوائنٹ پہ اتنی دیر تک بیٹھیں گے جتنی دیر تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ پوائنٹ جو میں نے پریزنٹ کیا ہے وہ ایبسلیوٹلی کلیئر کٹ ہے.
लेकिन फिर भी मैं अगर कोई चीज छोड़ूंगा तो ऐसे थोड़ी तुरंत ही छोड़ नहीं दूंगा। आप ये ऐसे नहीं बताइए, होता ना सर, ऐसे नहीं आप होता, कोई बीवी बच्चे ऐसे छोड़ नहीं होता। देता है फिर क्या आप ऐसे ही? नहीं ऐसे आपको आपको मुझे पता लग जाए मेरी बीवी ने वाकई किसी और मर्द के साथ सेक्स किया, मैं आपसे छोड़ दूंगा, दूसरी बात नहीं होगी। लेकिन मैं आप आपको उसी की फिर तो कंप्लीट वेरीफाई हुज्जत प्रेजेंट करेंगे कर ना, रहा हूँ। एटलीस्ट कुछ वीडियो तो देखेंगे, कुछ वेरीफाई पता यही है ना, लगेगा। आपको दिखा रहा हूँ, लिखी हुई चीज दिखा रहा हूँ, मैं आपको लिखी हुई चीज दिखाऊंगा। अल्लाह को अच्छा अगर मैं आप आपसे ये देखें कह दूं, देखें, अल्लाह मियाँ को मैं सुने आपसे सुने ये सुने, कह दूं, अल्लाह मियाँ को सुन ले एक सेकंड, ठीक है मेरी बात पूरी सुन ले, ताकि मैं जो हुज्जत दे रहा हूँ आपको। जी देखिए सर, अगर आपकी बीवी ने किसी और बंदे के साथ सेक्स किया है ना, ठीक है, और आपको वीडियो एविडेंस मिल जाए इस चीज का, ठीक है, जी जी आप उसे फौरन छोड़ बिल्कुल देंगे। हमारे लिए इस्लाम में वीडियो एविडेंस क्या है? कुरान। हमारे लिए इस्लाम में वीडियो एविडेंस है कुरान। जो कुरान की अरबिक है, अगर वो वीडियो एविडेंस नहीं है तो फिर और कोई एविडेंस हो ही नहीं सकता इस्लाम में। मैं आपकी बात मैं हदीस की बात नहीं कर रहा, सुन ले जरा, मैं हदीस की बात नहीं कर रहा, मैं तफसीर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान की बात कर रहा हूं। अगर मैं कुरान पाक से आपको साबित कर दूं 110% कि अल्लाह और शैतान एक ही जैसे काम कर रहे हैं कुरान पाक के मुताबिक, क्या आप इस्लाम छोड़ेंगे अभी के अभी? जी मैं बोल दूं, एक लाइन में बोल दूं कुछ, हम्म, अगर परमिशन हो तो। देखिए आपने बहुत बड़ा दावा किया है, ठीक है, यस, ठीक है, आपने दावा बहुत बड़ा किया है और मैं आपका दावा कबूल इसलिए करता हूं क्योंकि यहाँ पे मेरे ईमान का सवाल है। अगर ओके, ये बात ऐसी कुछ है जो मुझे हम्म नहीं पता, तो हम्म मैं आपको मुसलमान होने के नाते हम्म वादा करता हूँ कि अगर वो चीज़ जैसे इस वीडियो में जो भी आप दिखाओगे, जो समझाओगे, वो तो मैं ज़रूर नोट करूँगा ही। मैं आपको हम्म। वादा करता हूँ कि उसको मैं परखूंगा और आपकी जब भी नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग आएगी, अगर आप मुझे नहीं सर, नहीं मौका सर, ये देंगे, कहानी है, ये मैं कहानी वहाँ है, पे आके मैं वहाँ पे नहीं सर, ये आकर के कहानी है, ये कहानी है, वहाँ पे आके मैं आपको पक्का सबके सामने कहूँगा कि हाँ जी मैंने ये किया है, आप छोड़ दिया ये है, कहानी क्योंकि है। मुझे टाइम तो चाहिए ही चाहिए। नहीं सर, टाइम नहीं चाहिए ना, मैं आपके सामने दिखाऊंगा, उसमें टाइम की जरूरत ही नहीं है। अभी आपने इतना आपने बड़ा मुझसे मेरे साथ, चालाकी कर ली तो मैं तो बेवकूफ़ बन जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रह नहीं जाऊंगा। सर, आप बेवकूफ बन नहीं ना सकते। आपको अरबी पढ़नी आती है, आपने क्या पढ़नी आती है? मैं ठीक है अरबी पढ़ के लेता लफ्ज हूँ, की लेकिन मतलब ट्रांसलेशन बस। मीनिंग्स थोड़ी सी मेरी कमजोर है जी। तो सर वो अगर एक ही लफ्ज अल्लाह कर रहा है और एक ही लफ्ज शैतान कर रहा है, दैट्स इट, गेम ओवर। अरे भाई साहब आप तो मतलब मरवाओगे मुझे, लेकिन अच्छा ठीक है, आप दिखाओ क्या है आपके चले, पास, मैं नहीं देखूंगा। इस तरह नहीं, इस तरह मैं टॉपिक चेंज नहीं करूंगा अपनी वीडियो का। सुने, फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए, मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको डेटा ईमेल पे दूंगा ताकि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं स्ट्रीम का, ठीक है? आप मेरी ईमेल एड्रेस नीचे चल रही है आपके सामने, xmuslimadamseeker@gmail.com, ये स्क्रॉल पे चल रहा है। आप इस पे मुझे ईमेल करें और आपने मुझे ईमेल करके यही हुज्जत प्रेजेंट करनी है कि जनाब आपने मुझे डेटा देना था ये वाला एग्जैक्टली, मैं आपको रिप्लाई में वो वाला डेटा दूंगा एग्जैक्टली। फिर आप जाकर रिसर्च कीजिएगा, मैं अपनी स्ट्रीम में टाइम मजीद वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके लिए आप ठीक है, स्ट्रीम छोड़ सकते हैं ताकि दूसरों को मौका मिले। मैं आपकी हाँ ईमेल का ठीक है। वेट करूंगा। ओके जी भाई। हाँ यार एडम बाकी सब भाई, चुप कर जाए यार, रुक जाए यार, रुक जाए। ठीक है मेरे प्यारे भाई एमडी, मैं आपकी ईमेल का वेट करूंगा। अगर आप वाकई में सिंसियर हैं तो आप मुझे ईमेल करेंगे। जी, अच्छा। अब हमारे पास कौन से भाई हैं? हाँ, एडम भाई मुझे आपने 5-6 बोला मिनट कि दीजिए एडम भाई। सॉरी, मुझे दीजिए 5-6 मिनट, 1 घंटा से रुका हूँ, सुन रहा हूँ सिर्फ। जी फ्री थिंकर जी, आपके मुताबिक कौन है जी? कहाँ पे अल्लाह मियाँ? बाकी सब म्यूट कर दे यार, फीडबैक आ रहा है। जी एडम भाई, मेरा मुताबिक तो मैंने आपको जो कुरान की 57:4 आया तो पहले ही पढ़ के सुनाया जी सर, कि 57:4। अल्लाह तो सत्व आसमान में वहाँ अपनी आर्श में है, और वो एक पावर है, नूर है, एक ताकत है, ठीक है। उसने पूरा इस कायनात को 6 दिन में बनाया और वहाँ आर्श में विराजमान फरमा रहा है, ठीक है। ओके, लेकिन विराजमान वो क्या हर होता है? मतलब वहाँ आर्श में ही है अपना, वहाँ पे रुका है। द वर्ड विराजमान क्या होता है? वो जो अपनी हाँ आर्श में बता रुका है, हाँ अपनी आर्श है वहाँ पे वो रुका है। यार, स्टूडियो फुल नहीं है। सलमानी जलेबी आइए, आपके लिए जगह है। हाँ, सलमानी जलेबी भाई प्लीज आइए, आपके लिए जगह है। और मैं तो उसी कब का आयत आपका में वेट कर वो रहा भी था। कहा गया हर एक इंसान के साथ है, हर जगह में है वो। तो मेरा जो जहाँ तक समझ है, जैसे कि हम एक सूरज की वो इतना दूर होता है, उसका रोशनी हम तक पहुंचता है, ठीक उसी तरह अल्लाह भी एक नूर है ना, वो भी एक रोशनी है, वो एक ताकत है, पावर है, हर जगह में वो रहता है, ऐसा है। लेकिन उनका मेन जो जगह है वो सातवें आसमान है वहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो वो अल्लाह का दीदार, इस बारे में मैंने एक आपको हदीस बताया था, जो रसूल अल्लाह को पूछा गया था जो कयामत के दिन हम अल्लाह को देख सकेंगे या नहीं,
तो उस टाइम वो जो सही अल बुखारी का 4581 उसी हदीस में रसूलुल्लाह ने उसका जवाब दिया है, ठीक है। अच्छा, वो ये आप अगर विराजमान का मतलब क्या होता है मैं बताऊं आपको मैडम जी सर भाई? वो बता दें, हम मुझे बता- मुझे मुझे वो पता नहीं लगा, इन्होंने बोला नहीं, उसका जवाब नहीं दिया। विराजमान का मतलब होता है कि बैठे हुए हैं। तो यार फ्री थिंकर अल्लाह मियां बैठे हुए अर्श पे, तो बात खत्म हो गई। आई एग्री विद यू देन, अल्लाह मियां अपने अर्श अर्श पे का, बैठे। हाँ, अल्लाह का अर्श है, उसका 4 पाया है, 8 फरिश्ता उठा के उसमें रखा है और अल्लाह मियां अल्लाह उस पे उसी बैठा हुआ अर्श है, में है। हाँ, बेटा हो सकता है, वो तो तो मुझे इसका पूरा इल्म मतलब है नहीं अल्लाह है। फिजिकल है। मतलब जहाँ तक हमको बताया गया, मतलब उसके ऊपर हमारा सोच और कुछ जाता ही नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं वहां से अल्लाह का नहीं, चालू होता है। पॉज करें। आपने हाँ भी फरमाया, थैंक यू सो हाँ मच, थैंक यू सलमानी जलेबी भाई, आपने मुझे इसका असल हम्म, तर्जुमा बता दिया, बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू द स्ट्रीम। फ्री थिंकर भाई, अल्लाह मियां अगर विराजमान है यानी कि बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है अल्लाह की एक टुई है, उसने टुई रखी हुई है अपने अपने अर्श के ऊपर। विद दैट बीइंग सेड, अल्लाह मियां हर बंदे की शाहरक के करीब कैसे है वो समझा दें। क्योंकि वो एक पावर है, एक ताकत है ना भाई, एक वो तो नूर है ना, नहीं 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 रोशनी नहीं है। नहीं 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 नहीं, अभी आपने कहा विराजमान है, तो ताकत ताकत हाँ ताकत फिर विराजमान की ताकत हो सकती है, वो खुद ताकत नहीं हो सकता, बिकॉज ताकत की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। यार बाकी लोग म्यूट कर दें, मुझे फीडबैक आ रहा है यार, प्लीज यार, ये किसी से फीडबैक बहुत गंदा आ रहा है, मेरे कान जो है ना, क्योंकि मैंने हेडफोन पहना होता है, मेरे कान में बहुत फीडबैक आ रहा है। कौन है यार बाकी सारे? मोहम्मद। मोहम्मद इनसाइड से आ रहा है। नहीं, मोहम्मद से भी नहीं आ रहा, नहीं, कहीं और ये से आ फ्री रहा। थिंकर से आ रहा है। फ्री थिंकर यार, जब अपनी बात खत्म करें यार, आप म्यूट करें, आपका माइक बहुत गंदा है। एक सेकंड, लेट मी सी इफ आई कैन फिक्स हिज माइक्रोफोन। ओके, फ्री थिंकर आप बोलना जरा। हाँ हाँ, मेरा तो ओके, सही नाउ है। इट्स बेटर, नाउ इट्स मच बेटर। ओके, नाउ फ्री थिंकर्स लिसन, अगर अल्लाह मियां विराजमान है, व्हाटएवर मान है, जो उनसे भी मान है, अगर अल्लाह मियां कुछ से कोई से मान है अपने तख्त के ऊपर, तो ही इज नॉट जस्ट पावर, उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। विद दैट बीइंग सेड, वो हमारी शाहरक के पास कैसे है? प्लीज उसका आंसर दें। नहीं, तो एक सुपर पावर है जो पूरा कायनात को बनाया, वो अगर वहाँ बैठ भी सकता है, उठ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, वहाँ तो हमारा सोच जाता भी नहीं है, ठीक है। वो हमारे सोच के बाहर है। जिसने इस कायनात को बनाया है, तो उसका अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं? ये बात है ना। नहीं नहीं, एक सेकंड, उसका इतना सुपर, पावर है। इतना पावर है। हाँ, और उसके ऊपर का सोच तो ये हमारे इंसान के दिमाग में उसने दिया ही नहीं, तो हम कैसे सोच सकते हैं So, उसका अल्लाह ऊपर मियां क्या है। जब आप बाथरूम करने जाते हैं, अल्लाह मियां आपके साथ बाथरूम में होते हैं, हर एक जगह आपको में देख रहे होते हैं, उनका। आपको देख रहे होते हैं, हाँ, राइट? बिल्कुल जब बिल्कुल। आप मुठ लगा रहे होते हैं, उस वक्त भी अल्लाह मियां देख रहे होते हैं। हाँ, क्यों नहीं देखेंगे, सब कुछ जब आप देखेंगे, अपनी हर बीवी एक के चीज, साथ होते हैं, मतलब उस हर वक्त भी एक देख चीज रहे होते भाई। हैं। एक से बीवी के साथ है। सुन ले, हाँ एक से सुन ले, जब आप अपनी बीवी के साथ होते हैं, उस वक्त भी अल्लाह मियां देख रहे होते भाई, बीवी के साथ है, जन्नत में, जहन्नुम हैं। में, ओके, बाथरूम में, सुने, टॉयलेट में, जिस वक्त गटर में, आप हर एक जगह। जिस वक्त सुन ले, जिस वक्त आप बाहर जाके ड्रिंक शिंक पी रहे होते हैं, उस वक्त भी अल्लाह देख रहे होते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जिस वक्त आप अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहे होते हैं विदाउट मैरिज, तब भी अल्लाह मियां देख रहे होते हैं। अब अगर ये हर सब एक कुछ है, चीज, सुन ले मतलब ये सुन तो ले खत्म सुन ले, हो गया ना। हाँ हाँ, सुन ले, फिर अल्लाह मियां ने जो राइट साइड पे एक फरिश्ता रखा है और लेफ्ट साइड पे एक फरिश्ता रखा है जो लिख रेला है, उसकी क्या जरूरत है? वो तो अमलनामा के लिए, वही तो कह रहा इंसान हूँ, उसकी की क्या जरूरत है? अल्लाह अमलनामा। मियां तो हर चीज देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, और अमालनामे की में जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ बोलेंगे मैंने ये वाला पंगा किया था, आपका प्राइवेट पार्ट बोलेगा अल्लाह मैं भूल इस जाएगा औरत ना। के अंदर डाला था अपने आप को मैंने, आपका पेट बोलेगा मैं इसके साथ टच किया था, आपका मुंह बोलेगा मैंने इसके साथ चुम्मे किया था, आपकी आंख बोलेगी मैंने भाई ये नंगी लड़की देखी थी। तो फिर वो हाँ, अमालनामा लिखने की जरूरत क्या है? वो दो फरिश्ते क्यों भूल है अल्लाह अल्लाह जिनको भूल अल्लाह जाता है मियां, ना, हाँ नहीं भूल सलमानी जाता भाई, है। ये अल्लाह मियां ने वो दो फरिश्ते क्यों भाई लिखवाने के लिए रखे हैं? जब अल्लाह मियां खुद रिकॉर्डिंग हाँ कर रहा है हर चीज का, वो दो फरिश्ते क्यों तो साथ में हाँ, पोर्नोग्राफिक वीडियोस देख रहे हैं हमारी? ठीक है ठीक है। हम्म, तो उसका देखिए साफ मतलब है, वो नूर है, वो एक ताकत है, वो एक पावर है, हर एक चीज से वो वाकिफ है, हर एक जगह में उसका निगाह है, उसको सब कुछ मालूम है। चाहे वो सातवें आसमान में अपना उधर आर्श में भी क्यों ना बैठे, लेकिन उसका पहुंच हम तक है। वो एक पावर है। और जो फरिश्ते हमारे दाएं और बाएं में बैठे हैं, वो हमारे अमलनामा नोट करेंगे, और क़यामत के दिन वो हमारे हाथ में सौंप दिया नोट जाएगा। तुम सुनो सुनो हमको मेरे प्रूफ दे भाई, देंगे हमने ये गलत किया। ये नोट करने वाली बात उसके लिए बात बैठती है जो बंदा भूल जाएगा, ठीक है।
मतलब अल्लाह गजनी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मतलब भूल जाएगा वो, समझा? हाँ नहीं, अल्लाह को सब उस कुछ याद है, उसने सब बनाया, तो उसको फिर सब लिखने की मालूम क्या है। हम जरूरत है? इंसान ऐसा है लिखन क्योंकि अच्छा, इतना लिखता बेवकूफ क्यों है इंसान है। इंसान? हाँ, कोई अरे वही है। नहीं मेरे भाई, कोई भी इंसान किसी चीज को लिख कर क्यों रखता है अपने पास? हाँ, वही बात मैं तुमको बता रहा हूँ, सुनो एक मिनट। जो इंसान का नेक अमल और उसका गलत अमल लिखा जाता है, दो फरिश्ता है, उसको अल्लाह की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अल्लाह वो चीज इसलिए लिखवाता है फरिश्ता से, कयामत के दिन ये अमलनामा हम इंसान के हाथ में दे देंगे, क्योंकि हम वो चीज भूल जाते हैं। ठीक है, भूल जाते आदम हैं ना, अलैहिस्सलाम के भूल जाते सामने, हैं ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु भूल अलैहि जाते हैं ना, वसल्लम के सामने भूल हमको जाते हैं। अभी देंगे, आपने हम भूल बोला ना, जाते हैं। हम इन्होंने बोलते मान हैं रे लिया भाई, अल्लाह भूल जाता है। अल्लाह क्या बोलते नहीं, हैं? बेवकूफी बात मत करो, फिर ठीक है। हम इंसान के लिखने लिए की है। ठीक है, तुम चुप फरिश्ते ही लिख रहे बैठो, हैं ना मेरे मैं भाई। एडम से बात करूंगा। नहीं, और जलेबी अरे बात कर क्या रहा है, हो जलेबी गया? बात कर रहा है, मसूद हाँ बात कर रहा है, मसूद करो यार। मैं तो कभी बात हाँ, भी नहीं करता यार, कभी तो करता हूँ, तो और करने दो यार। इंसान की अमलनामा इंसान भूल जाता है, और अल्लाह इंसान के हाथ में देंगे। ठीक है, और प्रॉफिट के सामने देंगे, ताकि हमको हमारे किया हुआ पर कोई एतराज ना रहे। इस टाइम हम वो चीज एक्सेप्ट करें कि हमने गलत किया। ठीक है, अरे तो वो अगर चीज हमको अगर प्रूफ देंगे। सुनो तो मेरी बात, लिखा हुआ देने की जरूरत है, इसके लिए लिख रहा है क्या अल्लाह? हाँ भाई, पूरा एग्रीमेंट करके भूल लिख के जाएगा देंगे। इसके लिए लिख आज रहा है के ना दुनिया में भी साहब ने। कोर्ट का एग्रीमेंट नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ, कौन बिलीव करता है? कोई अरे शादी करते है, उसका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी जज के सामने होना चाहिए, फिर बिलीव करते अरे हैं, लेकिन वो वैलिड होता है। वो सर्टिफिकेट इसके लिए होता है भाई, क्योंकि भाई जज जज के पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना, समझे आप? हाँ, नहीं तो सुनो। लोग तो हाँ, भूल, जलेबी सुनो भाई। मेरी बात तो सुनो यार। वो ठीक है, ठीक आपको है। कोई भी सर्टिफिकेट इसके लिए दिया जाता है क्योंकि भाई क्या बोलते हैं, कहीं पर भी आपको दिखाना पड़े तो वो आप दिखा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हाँ, उससे मतलब कि भाई दूसरे लोग भी तो भूल जाएंगे ना, मतलब ये उनके रिकॉर्ड में रहे, इसके लिए लिखा जाता है उसको। हाँ। रिकॉर्ड इसके लिए किया जाता है क्योंकि भाई कभी वो पेपर कहीं पर घूम जाए तो आप वापस से वो नंबर दिखा के वहां से ले सकते हैं, समझे आप? अच्छा ठीक है, सुनो, मैं अपनी बात तुमको बता देता हूँ, तुम सुनना, और बाकी सारे वो व्यूअर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तुम समझो ना समझो, व्यूअर्स को समझ में आना चाहिए। हाँ हम दुनिया बिल्कुल। में भी कुछ काम करते हैं, वो भी आजकल एग्रीमेंट करते हैं, ताकि वो वैलिड हो। और अल्लाह हमारे साथ फरिश्ता इसलिए दिया है, ताकि कयामत के दिन हमारा अमलनामा हमारे हाथ में दे देंगे, और हम वो चीज से जुटला नहीं पाएंगे। वो प्रूफ है। ठीक है, हमने गलती किया, उसका सजा उस टाइम हमको मिलेंगे, और अल्लाह अमलनामा हाथ साजिद में भाई, देंगे। जलील भाई, ये लोग जो किताब, ये जब क़यामत में जब जाएंगे अल्लाह ताला के पास, तब वहाँ अल्लाह इनको फिजिकल में रहेगा, तब अल्लाह इनको बताएगा कि तुमने ये गलती की है। ये वहां पे अल्लाह ताला का बात का इनकार कर देंगे। पर जो हाँ तब दुनियावी किताब है कुरान, ये उस पर यकीन कर रहे हैं। वहां पे इनकार हाँ करेंगे, यहाँ पे यकीन कर रहे हैं। समझ नहीं है इनका वहां लॉजिक इस पे चीज में। मतलब हाँ कोई ठीक है। हाँ, इनकार कयामत की करेगा। सीन ये सुनो है, तो मेरी देखो। बात, मेरी बात सुनो। हाँ, जो इंसान हाँ। अल्लाह की बात को अगर वो झुटला देगा, तो वो अल्लाह ने दिए हुए कागज पे लिखी हुई चीज को कैसे क्या सच मानेगा, ये बताओ? नहीं मानेगा ना। नहीं, उस टाइम मानेंगे, वो रोएंगे, बोलेगा अबे गिड़गिड़ाएंगे, अबे सब नहीं कुछ नहीं नहीं, क्यों पछताएंगे, क्यों? उस टाइम क्या क्या इतना फिर गलती लिखा किया। हुआ चीज देने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने हाँ, बोल वो दिया, बस बात बोल जिशान, दिया। सुनो, मैं उसमें बहस करके क्यों आधा घंटा वक्त बर्बाद करूं? बाद में तुम भी दिमाग लाना, मैं भी लगाऊंगा, और सारे व्यूअर्स को मालूम होगा ना कि इसका लॉजिक लेकिन सही है। ये जो आपने तो जिशान ने माना ना बताया ये कयामत बात, के दिन। आपने बात हाँ, सुनो। सुनो, आपने आपने ये बात मान लिया ना कि अल्लाह भूल जाएगा बाद में, क्या इसने अल्लाह क्या नहीं क्या अमल भूलता रे किए भाई, थे। तू भूल जाएगा ना। तेरा तेरा सामने रखेंगे, तूने ये सब गलत किया, शराब पिया, दारू पिया, उस टाइम डंडा लगाएंगे, तुमको जहन्नुम में डालेंगे तुझे। हाँ तो ठीक अगर है। अल्लाह तुमको तुमको खुद खुद अपने मुंह से बोलेगा, बिना तुमको पेपर दिए, नहीं नहीं, तो क्या प्रूफ तुम ये चाहिए भाई, बात दुनिया में मानोगे भी या नहीं प्रूफ मानोगे? चाहिए, तो आखिरत में भी प्रूफ अल्लाह क्या? प्रूफ देगा। अल्लाह बोलेगे अबे नाइंसाफी नहीं तूने अपने करता। मन से कुछ भी लिख दिया, अल्लाह तो प्रूफ। नाइंसाफी नहीं करता, वो प्रूफ देगा। ठीक है, और फरिश्ता अरे तो इसलिए साथ लेकिन में डाला है। बहुत भारी सेंस है बात का। यार एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, मैं यहाँ पे जरा इंटरप्ट हाँ करूँ जरा, हाँ एक करो सेकंड, करो फ्री थिंकर, एक सेकंड। अल्लाह अगर हाँ प्रूफ डूंगा। देगा ना, सुन लीजिएगा। अल्लाह अगर प्रूफ देगा ना, तो उसको दो फरिश्तों की जरूरत नहीं है कि एक फरिश्ता अच्छाई लिख रहा है, एक फरिश्ता बुराई लिख रहा है। इसीलिए ये वीडियोस मैंने पहले बनाई थी कि अल्लाह के फरिश्ते, मैंने दो 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 सैटरडेज को ये वाली वीडियोस पूरी की थी अल्लाह के फरिश्तों के ऊपर, जिसमें एक आपके राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, एक अच्छाई लिख रहा है, बुराई लिख रहा है। उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह खुद देख रहा है और हर जगह पे मौजूद है,
लेट्स अज्यूम आपकी ताकत से, और वो हर जगह पे मौजूद है, हर जगह देख रहा है, वो वीडियो कैमरे दिखा रहा है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, उसको वीडियो कैमरा दिखाने की जरूरत नहीं। अल्लाह कहता है ना, आखिरत में हमका हमारा हर उजू बोलेगा, हर उजू जब बोलेगा इसका मतलब मेरी उंगलियां बोलेंगी कि कहाँ कहाँ घुसी थी, ठीक है, मेरा प्राइवेट पार्ट बोलेगा कहाँ कहाँ गया था, ठीक है, मेरे लिप्स बोलेंगे किस किस के साथ चिपके थे, ठीक है, मेरा दिमाग बोलेगा उसने क्या क्या गंदी चीजें देख के तो किया था, मेरी आंखें बोलेंगी कौन कौन सी पोर्नोग्राफिक वीडियो देखी थी। तो जब ये सब कुछ बोल देंगे तो उस वक्त मुझे इन फरिश्तों की लिखी हुई किताब की जरूरत ही कोई नहीं है। ये फरिश्ते क्यों हैं जो मेरी पोर्नोग्राफिक वीडियोस देख रहे हैं हर रोज के रोज? हाँ ठीक है दैट्स द एडम भाई, प्रॉब्लम। हाँ वो आपने जो बताया इसमें भी एक लॉजिक है, और मैं भी जो बताऊंगा उसमें भी एक लॉजिक है जो हमने पढ़ा है। तो हम दोनों के बात में से कौन सा सही कौन सा गलत हो तो फिर उसमें बहस आगे होते रहेगा। बात ये कि जो हमने पढ़ा है उसमें ये लिखा गया, अल्लाह अल्लाह हर एक चीज से वाकिफ है। इंसान की जो मन मन में वाकिफ हम है, क्या मैं तो सोचते मानता हूँ हैं। ना वाकिफ है, यही हाँ तो पूछ रहा हूँ हाँ भाई, क्यों हाँ रिपीट कर वही, रहे हो? हाँ फिर मुझे मन मन बताओ से कि क्या सोचते। फिर वो फरिश्ते क्यों है दोनों? ये क्वेश्चन है सिंपल, हाँ वो दोनों फरिश्ते वही क्यों है? वही वही मन मन से क्या सोचते हो भी अल्लाह को मालूम है, हर चीज से वाकिफ है दुनिया की। और दो फरिश्ते हमारे दो कंधों में बैठा है, एक जो गलत काम लिखते हैं, एक अच्छे काम लिखते हैं। और वो चीज जो आदम अलैहिस्सलाम हमारे रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सबके सामने और उनका उम्मत के हाथ में ये दिया जाएगा, तुम्हारा अमलनामा ये है, तुमने दुनिया में ये गलत काम भाई किया, क्यों उसके रिपीट वजह कर रहे से हो? जो हम सवाल है तुमको उसका जवाब दे दो यार, हाथ जोड़ता हूँ, जहन्नम में विनती डाल करता रहे हूँ हैं। यार। सुलेमानी हाँ नबी वही, हिंदी में विनती करने को क्या कहते हैं यार? आप हिंदी बोल रहे हैं साहब। अच्छा मैं भाई हिंदी बोल रहा विनती हूँ, ही ओके कहते हैं, ओके विनती ही है। ओके ओके, ये हिंदी है भाई। आपकी विनती कर रहा हूँ भाई, आपकी मेहरबानी, असल मुद्दे का जवाब दे दो भाई, तो मत जाओ। हाँ वही मैं जो इस्लाम में जो पढ़ा मैं इतना बता सकता हूँ, क्योंकि वो हमारे अमलनामा हमारे हाथ में देंगे हमको वो तो चीज यही तो मानने के सवाल लिए। है कि अमाल नामे की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह मियाँ ने ऑलरेडी हर चीज रिकॉर्ड किया और मेरा हर उजू अंग अंग बोलेगा, ये भी गाना है, अंग अंग धड़के मेरा, जियारा धड़के मेरा, वट इसी टाइप का गाना था भाई। वो अंग अंग धड़केगा उस वक्त और बोलेगा, उसको जुबान मिल जाएगी। तो भाई ये जो दो फरिश्ते मेरी पोर्नोग्राफिक देख रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं? उस टाइम आपकी तरह दो चार लोग की बात अल्लाह के सामने बहस करेंगे, हमने ये सब गलत कैसे नहीं करेंगे किया। अगर मेरा अच्छा अंग अंग बोलेगा? अच्छा बहस तो मैं हाँ तब ये बहस कर, अच्छा जलेबी मैं भाई हाँ सुनो तो तो इसलिए एक तो मिनट रुको प्रूफ है ना, पूरा। मजे का सवाल मैं अभी इनसे पूछता जी हूँ। तो ये फरिश्तों ने क्या देखा मोहम्मद साहब ने किस किस के साथ और कैसा कैसा किया? बिल्कुल देखा। बिल्कुल देखा। तो हर एक ये चीज नबी की फरिश्ते तो गुस्ताखी देखते हो, नेक लोग होता है उनका देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज देखते। तो क्या है उसमें, अरे भाई दुनिया में रहना, सेक्स करना, ये करना वो करना कोई गलत नहीं है, उसमें हम शर्माते क्यों है? वो अल्लाह हाँ ने वो नियामत हमको दिया है, उसमें आराम से करना चाहिए, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। वो कोई खराब काम है क्या, गलत है ठीक। क्या? अच्छा एक है। एक क्वेश्चन ठीक पूछूं है। आपसे फ्री थिंकर, एक क्वेश्चन पूछूं हाँ आपसे। हाँ अल्लाह हमारे अमाल नामा लिखता है ना, जो भी हम गुनाह के हाँ जो भी सौंपे सब लिखता है, आई मीन फरिश्तों से लिखवाता है ना। हाँ तो ये एक छोटी सी चीज अल्लाह फरिश्तों से लिखवा रहा है, और जो कुरान इतनी मुकद्दस किताब है वो उन्होंने जिब्राइल को कहा, जिब्राइल अगर मोहम्मद पे वही उतारते थे और फिर मोहम्मद अपने मुंह से बोल कर लिखवाते थे इंसानों से, तो अल्लाह ने इसको डायरेक्ट फरिश्तों से क्यों नहीं उतरवा दिया? नहीं ये तो सवाल बहुत अच्छा वैलिड है। उसमें एक और सवाल है कि यार एक दुनिया में एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के सिवा नहीं हलता या फिर नहीं इधर उधर होता। तो मतलब जो इंसान यहाँ पे दुनिया में कर रहे हैं वो भी अल्लाह अल्लाह ही करवा रहा है उनसे। अभी एग्जैक्टली जो चीज अल्लाह ही करवा रहा है उनसे, वो चीज भाई लिखने की क्या जरूरत है? जी अच्छा फ्री बिल्कुल थिंकर बिल्कुल। सही भाई, कहा। ये जो जो अगर जो कोई फ्री थिंकर भाई, कोई ये जो जॉनी सिंस का नाम सुना है आपने? उसका अगर बाई चांस हाँ हिल गया तो ये कौन हिलाता है? या अल्लाह। हाँ, देखिए आप लोग मैं ये कह रहा हूँ जो क्रिटिसाइज ठीक है वो करते एक टाइम, लेकिन अभी मतलब कोई मैं भी एक दो घंटा से रुका हूँ, ऐसा कोई वैलिड मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट रखो, और आज के टाइटल के ऊपर तो वो भी बात करेंगे। सर और अच्छा आपने ऐसे ये सफाई बेकार की कर दी बात है ये ना करने आज के के लिए टाइटल हम, की? आज के हाँ रात टाइटल भाई 3-4 सर, बजे हम करेंगे आराम सर से। आपके अभी टाइटल, एडम भाई ने बोला शैतान, अल्लाह शैतान थोड़ी देर पहले बताया, ये शैतान कहाँ से आया, ये शब्द कहाँ से आया एडम भाई?
سر آج کا ٹاپک نہیں ہے وہ، بھائی اچھے بھائی تھے، انسان بھائی تھے، ان سے بات کرنی تھی میں نے، اللہ ڈنگروں نے سے بات جس نہیں کرنی. شیطان کو بنایا آپ اس کو بلیف کرتے لیکن اللہ کو نہیں کرتے، وہ کیسے بات میں ہوئی؟ کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں اللہ بڑا شیطان ہے، ابلیس چھوٹا یہ شیطان ہے، اللہ بڑا شیطان شیطان ہے، ہے. شیطان آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ اللہ نے بتایا اس لیے نا. نہیں قرآن میں لکھا ہوا اس لیے. ہاں وہ تو اللہ نے یہ قرآن یہ دیا مسلمان نا. مانتے ہیں نا کہ اللہ نے اتارا، ہم تو نہیں مانتے نا، اچھا، ہم تو کہتے ہیں لیکن محمد آپ نے دیا. شیطان کو مانتے ہیں جو اللہ نے ایک شیطان ایک ابلیس کو جو ٹھیک ہے جو ایک جن میں سے فرشتہ کا اعلیٰ درجہ پایا تھا اور تکبر کے کارن اس کو کہاں لکھا ہوا مولود ہے؟ دیا قیامت کہاں کو. لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ یہ بات اس قرآن سے شیطان ثابت کو کر دے، یہ بات قرآن سے ثابت کر دے کون سا ابلیس کا کہ یہ ابلیس جو تھا عزازیل کا؟ وہ بہت ہاں اعلیٰ درجے کا فرشتہ تھا. نہیں وہ تو جن میں سے تھا اور فرشتہ میں اس کا مقام ہوا تو وہی جو یہ آدم فرشتوں کا میں اس کا مقام ہوا اور یہ جن میں تھا، یہ بات قرآن سے ثابت کر دے. وہی پورا وہ سورہ پڑھیں گے تو اس میں سب آتا ہے نا، تم نے بھی نہیں پڑھا، ہم پچھلی نہیں ڈیبیٹ میں دیکھے تھے. میں ثابت کر سکتا ہوں نہیں ہے تو یہ نہیں کہ تو ثابت ہاں کر دے میں مان لوں گا، قرآن میں ایسا ہے ہی نہیں. یہ تمہیں کہانی تمہارے ٹھیک ہے، ملا نے بتائی ہے، یہ بھی ایک کہانی ہے جو نہیں تمہارے نہیں ملا نے بتائی ہے. نہیں یہ قرآن حدیث میں ہے جو عزازیل ہے سر ابلیس مجھے وہ ایک جن میں سے آگ سے پیدا فری کیا تھنکر گیا. اور ہاں سنو، یہ جن میں سے تھا اور فرشتوں میں ہو ہاں گیا، یہ بات ہاں قرآن سے ثابت کر دو میں مان لوں گا. قرآن یا حدیث سے جو بھی وہ پڑھنا پڑے گا، ابھی تو یاد نہیں مجھے وہ چیز، لیکن ہم پچھلی ڈیبیٹ میں اس کے اوکے، تو بارے میں یہ بحث کہانی کیے تھی، تھے نا. اس کو یہ کہانی تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہانی پہ کہانی، کہانی تے کہانی، ٹھیک ہے کہانی میں تے یہ کہہ کہانی. رہا ہوں کہانی تے جن کہانی میں پتہ سے ہے؟ ہے کہانی کہاں تے سے کہانی وہ پتہ ہے؟ چھوڑ دو. آپ بات کہانی تے اس میں کہانی کرو پتہ ہے؟ آپ شیطان کو بلیف کیوں کرتے ہو؟ کہانی تے کہانی ہے. نہیں ارے شیطان کو ہٹا کیوں دو بلیف یار کرتے کہانی ہو؟ بازو کوڑ مار دو جھوٹے ہو خدا کے لیے یار. نہیں کون ٹھیک ہے، بولتا ہے ہٹانے فری والا؟ تھنکر جی ابھی میں میں بولا، ایڈم کو یہ میں نے بتا جب دیا. تم کو ایک چیز بولا کہ جو انسان مطلب دنیا میں ایک بھی چیز ایک بھی پتا اللہ کی اجازت کے سوا نہیں ہل سکتا، اور دنیا میں آپ لوگ جو بھی کر رہے ہو یہ سب اللہ چاہتا ہے وہی کر رہے ہو آپ. تو پھر بھائی یہ کتابیں لکھنے کا آپ لوگ جو بھی کر رہے ہو وہ سب لکھنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا بھائی. سر آخری حجت لے لیں ان سے، پھر ہم ان ہاں کی لے لو. ختم کریں گے. اچھا یہ ٹھیک ہے ایڈم سلمانی بھائی بھائی. یہ ذرا سپر چیٹ پڑھ لیں، بڑی مزیدار ہے ان کے لیے. ہاں اشتوش تیواری لکھتے ہیں بھائی لے اللہ اوور 7th آسمان، اور میں آسمان کی اونچائی میں چاروں طرف کورا ہی کورا. If you know this meme, You got you it. got it. اچھا ٹھیک ہے ایڈم بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ وہ تھوڑا حدیث میرا جو کچھ کویشچن کیا تھا میرا ایک بھائی نے، اس ٹائم میں نے جب جواب دیا تھا تو وہ وہ تھوڑا بھائی دکھا چلا سکتے گیا، اسکرین میں. وہ بھائی چلا گیا، اس کو اچھا وہ چھوڑ تو دیں. چلا گیا کیونکہ وہ جو قیامت کے دن ججمنٹ کے دن اس ٹائم ہم رسول اللہ نے بتایا کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں نہیں، بالکل دیکھ اسی سکتے میں ہیں. اسی میں وہ حدیث آیا تھا. ٹھیک جی ہے جی تو دیکھ وہ بھائی سکتے نے اس ٹائم مجھے غلط بولا تھا. 4581 صحیح البخاری کا. ہیں. وہ مطلب ایڈم ڈینر بھائی کرتے یہ جو فری کر تھنکر بھائی ہے سکتے. نا، ان کی ایک کرامت بھی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ اچھا کرامت بھی ہیں جی. ہاں کرامت یہ ہے کہ یہ کھانا نہیں کھاتے، یہ کھانا نہیں کھاتے. یہ جو بےزتیاں دماغ ہوتی ہیں کھاتے. نا ان کی، اینی نہیں بھائی ٹائم صبح میں 6 بجے فرشتوں میں سے اٹھتا ہوں. نہیں ہوں. ٹھیک ہے فرشتہ میں سے نہیں ہوں جو کھانا نہیں کھاتا، میں ہاں انسان تو ہوں کھانا معصوم بھی نہیں کھاتا کہہ رہا ہوں. ہوں میں نے آپ ہاں کو معصوم نہیں کہا، میں نے آپ کو معصوم ارے نہیں یہ کہا، فرشتہ معصوم نہیں نہیں کہا ہے. ہے ایڈم بھائی، آپ ہاں کو پتہ ہے ان کے بارے میں؟ یہ اس دن امام صاحب کے اسٹریم میں بیک اسٹیج پہ جا کر کے پرائیویٹ چیٹ میں اتنی گندی گندی گالیاں نکالی ہیں نا نہیں گاڈس کو، کوئی اتنی گندی گندی بھی نہیں، گندی. آپ چارٹ اس کا دو اسکرین شاٹ دکھاؤ، کچھ اچھا بھی یار گندی اتنی نہیں گندی ہے. نہیں تھی جتنی گندی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھینک یو ہاں فری وہ تھنکر، نہیں ہے. آج آپ کے ٹھیک ساتھ ہے کافی بات ہو گئی، باقی باتیں بعد میں کریں گے. بائے بائے کر دیں سب کو. چلو ٹھیک ہے اوکے ٹاٹا بائے بائے. اوکے ٹاٹا بائے بائے. اللہ حافظ. اللہ آپ کو 100